بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں مذہبی جماعت کا قافلہ 19 گھنٹے لاہور کی حدود میں رہا۔ شہر سے قافلے کے نکلنے کے بعد تمام بند راستے کھول دیے گئے۔ راستوں کی بندش سے پریشان شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ میٹرو بس سروس بھی بحال کر دی گئی۔ جمعے کے روز 4 بجے کے قریب چوک یتیم خانہ سے دینی جماعت کا مارچ مرکزی مدرسے سے نکلا۔ چوک یتیم خانہ پر کنٹینرز کو ہٹا کر پہلی رکاوٹ کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد سمن آباد اور لٹن روڈ پر کنٹینرز ہٹاتے ہوئے قافلے آگے بڑھے۔ ان تینوں مقامات پر پولیس نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ تاہم قافلہ جب ایم اے او کالج کے قریب پہنچا تو اندھیرا ہو چکا تھا، جہاں کنٹینرز سے 3 لائنیں لگائی گئیں اور سی سی پی او سمیت رینجرز کے سینئر افسران اور اہلکار موجود تھے۔ مذہبی جماعت کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان ایم اے او کالج چوک میں زبردست تصادم ہوا اور 2 گھنٹے تک شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا، جس کے بعد کارکن پولیس کے سب سے مضبوط ناکے کو بھی عبور کر گئے۔ ایم اے او کالج چوک کراس کرنے کے بعد کچہری چوک میں بھی پولیس نے کنٹینرز لگا رکھے تھے، جن کو قافلے میں شامل کارکن ہٹانے میں بآسانی کامیاب رہے اور پھر داتا دربار پہنچ گئے۔ داتا دربار کے سامنے 3 گھنٹوں تک بیٹھے رہنے کے بعد مارچ پھر روانہ ہوا اور آزادی فلائی اوور پہنچ گیا، جہاں 12 بجے رات فیصلہ کیا گیا کہ رات آزادی فلائی اوور پر گزاری جائے اور کارکن صفیں بچھا کر وہیں آرام کرتے رہے۔ آزادی فلائی اوور پر کارکنوں کو روکنے کے لیے بھی پولیس نے شیلنگ کی، لیکن مارچ نہ رکا اور بتی چوک پہنچ گیا، جہاں پر ایک بار پھر پولیس نے شیلنگ کی اور کارکنوں کی جانب سے پتھراؤ ہوا، جس سے 60 پولیس افسر اور اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ مذہبی جماعت کے مطابق پولیس تشدد سے ان کے ہزاروں کارکن زخمی ہوئے۔ جگہ جگہ پولیس کی کارکنوں کو روکنے کی کاوشیں کسی بھی جگہ کارگر نہ ہوئی اور کارکنوں اور پولیس میں تصادم کی وجہ سے جانی و مالی نقصان ہوا، جس کے بعد 11 بجے صبح قافلے لاہور کی آخری حد شاہدرہ امامیہ کالونی پھاٹک کراس کر گئے۔ عرفان ملک، سٹی 42۔ مذہبی جماعت کے مظاہروں کے دوران لاہور پولیس کے شہید ہونے والے دونوں اہلکاروں کی نماز جنازہ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ادا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل شریف اور اول و آخر درود پڑھ کر شہداء کی ارواح کو ایصال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایاک نعبد غیر المغضوب علیہم۔ قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ الہ العالمین، حاضرین نے جو کلمات طیبات تلاوت کیے، ان کا ثواب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہیں قبول و منصور فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے ان کلمات طیبات کا ثواب بالخصوص شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد ایوب اور شہید کانسٹیبل خالد جاوید کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول و منصور فرما۔
الہ العالمین ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، ان پر قبر کی منزلوں کو آسان فرمانا، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ الہ العالمین محکمہ پولیس کے لیے ان کی جتنی بھی خدمات تھیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور انہیں ان خدمات کا اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ مذہبی جماعت سے مذاکرات کے آپشن پر مشاورت کی گئی۔ امن کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی زیر صدارت پنجاب سیف سٹی اتھارٹی ہیڈ کوارٹر میں امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری، صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت، سینیٹر اعجاز چودھری، علی امین گنڈاپور اور چودھری ظہیر الدین نے شرکت کی۔ چیف سیکریٹری کامران علی افضل، آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان، ایڈیشنل سیکریٹری ہوم اور کمشنر لاہور بھی شریک ہوئے۔ وزیر داخلہ کو آئی جی پنجاب نے امن و امان کی صورتحال اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حکمت عملی پر بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے مذہبی جماعت کے احتجاج کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا اور مستقبل کے لاہے عمل بارے تمام متعلقہ اداروں سے رائے لی۔ اجلاس میں مذہبی جماعت سے مذاکرات پر غور ہوا اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ڈینگی مچھر کا ڈنگ مزید تیز ہو گیا۔ موذی وائرس نے 4 گھرانوں کو سوگوار کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں 361 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 1300 کے قریب پہنچ گئی۔ سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے مختص بیڈز کی تعداد بڑھا کر 1277 کر دی گئی ہے۔ ڈینگی کا خوف شہر پر آسیب کی طرح چھانے لگا۔ موذی وائرس نے ایک دن میں 4 قیمتی جانیں نگل لی۔ رواں سال ڈینگی سے جاں بحق افراد کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں ڈینگی کے مزید 361 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مرض سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 6294 ہو گئی، جبکہ ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 1294 تک پہنچ گئی ہے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے بیڈز کی تعداد بڑھا کر 1277 کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے 749 مریض زیر علاج ہیں اور 528 بیڈز خالی ہیں، جبکہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے 787 بیڈز مختص ہیں اور 471 مریض زیر علاج ہیں۔ ماہرین پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ مرض کے پھیلاؤ کے حوالے سے اگلے 15 دن اہم ہیں۔ شہریوں نے احتیاط نہ برتی تو ڈینگی مزید پھیلے گا، جس سے ہسپتالوں پر بھی دباؤ بڑھ جائے گا۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں کورونا ویکسینیشن کا ہدف حاصل نہیں ہو سکا۔ فنڈز ہے نہ عملہ۔ بوکھلاہٹ میں محکمہ پرائمری ہیلتھ نے 25 اکتوبر سے بغیر تیاری گھر گھر ویکسینیشن لگانے کی مہم کا اعلان کر دیا ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی جانب سے لاہور سمیت صوبے بھر میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن کا ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا۔ صوبے بھر میں 47% افراد کو کورونا ویکسینیشن کی 1 خوراک، صرف 20% کو اب تک کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں لگائی جا سکیں۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے اب بوکھلاہٹ میں 25 اکتوبر سے گھر گھر جا کر ویکسین لگانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے لیے نہ فنڈز اور نہ ہی عملہ میسر ہے۔ تمام اضلاع کے سی اوز ہیلتھ کو گھر گھر جا کر ویکسینیشن کے لیے عملے کی بھرتی، اینڈرائڈ ٹیبلٹ خریدنے سمیت ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنے کا ناممکن ٹاسک دیا گیا ہے۔ سی اوز ہیلتھ کو 21 اکتوبر کو مراسلہ ارسال کر کے 25 اکتوبر تک اپنے وسائل سے تیاری ممکن کرنے کا کہا گیا ہے۔
T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। शाहीन भारतीय सूरमाओं को दबोचने के लिए तैयार हैं। शादाब, अम्माद और शाहीन भारतीय बल्लेबाजों की विकेटें उड़ाएंगे। बाबर आजम, रिजवान, प्रोफेसर और शुएब मलिक छक्के छुड़ाएंगे। बड़े मैच पर शहर में बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। बड़ा इवेंट, बड़ा मुकाबला, कौमी टीम और रिवायती हरीफ भारत में जोर का जोड़ पड़ेगा। हाई वोल्टेज टाकरे के लिए पाकिस्तान के 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम कप्तान होंगे। आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, मोहम्मद रिजवान स्क्वाड में शामिल हैं। अम्माद, वसीम, मोहम्मद हफीज, शादाब खान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। शुएब मलिक, हारिस रऊफ, हसन अली और शाहीन शाह आफरीदी को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। फाइनल 11 का ऐलान मैच से कबल होगा। शाहीनों ने दुबई में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। मोहम्मद रिजवान, हफीज और शुएब मलिक ने पावर हंटिंग पर तवज्जो दी। कोच सकलैन मुश्ताक ने स्पिनर्स को हरीफ बल्लेबाजों को काबू में करने के गुर बताए। लाहौरियों ने टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और बाबर आजम एंड कंपनी से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली है। हमारे अपने जो हैं क्रिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे बाबर आजम है, हफीज़ है, हमारी अपनी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम है, तो इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। दुआ है कि पाकिस्तान विन करे, पूरे पाकिस्तान की दुआ है कि पाकिस्तान विन करे। हमारी विश होती है कि हमारा पाकिस्तान ही जीते हर दफ़ा, और फैमिली के साथ देखेंगे और एंजॉय भी करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। और अब बात करें शहर के मौसम की, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम ठंडा हो गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। सादिया खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। सादिया, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है? आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश के बाद वाज़ेह तौर पर मौसम में तब्दीली महसूस की जा सकती है। अभी अगर हम बात करते हैं लाहौर की, तो लाहौर के इलाकों में खासकर फ़ज़ाई आलूदगी काफ़ी हद तक कमी उसमें देखने में आई। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि दर्जा हरारत जो है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने को मिली। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अगर बारिशें होती हैं तो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे असरात जो हैं वो लाहौर के मौसम पर हमें महसूस होंगे। तो अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है। बहुत शुक्रिया सादिया। यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए ज़रूरिया के बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स भी महंगी हो गई। 1.5 लीटर बोतल 15 रुपए इजाफे से 100 रुपए, 2.25 लीटर बोतल की कीमत 129 रुपए हो गई। इंतजामिया ने तहैया कर लिया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कोई चीज सस्ती नहीं रहने देनी। आटा, चीनी, घी, मसाला जात और जनरल आइटम्स के बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। 1.5 लीटर की बोतल 15 रुपए इजाफे से 100 रुपए की हो गई। दूसरी कंपनी की बोतल 6 रुपए बढ़ाकर 90 रुपए कर दी गई है, जबकि 2.25 लीटर बोतल की कीमत 129 रुपए तक पहुँचा दी गई। ये तो हर घराने की नीड है जी, हर घराना इसको लेता है, लेकिन अपना डिपेंड करता है कि एक एक चीज लेने आए ना, तो आज लेने आए तो कल दूसरा रेट होता है, किसी दूसरे के पास जाए तो वो दूसरा रेट होता है। यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों की सहूलत के लिए बनाए गए हैं ताकि इन्हें ओपन मार्केट की निस्बत सस्ती अशिया मुयसर हो। ताहम सब्सिडी के खात्मे से ये सस्ते स्टोर्स आम मार्केटों से भी महंगे हो गए हैं। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी की हमरा सईद अहमद, सिटी 42। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का बेकेवाल मोड़ पर एहतजाजी धरना जारी है। कारकुनान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने की। शिकार है जिस तरह से पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली की कीमतें बढ़ी, हर खाने पीने के चीज़ के अंदर बेतहाशा इजाफा। लोग तो सच्ची बात है कि उनके चूल्हे बुझ रहे हैं। तो खान साहब ने वादे किए थे, कौम को सब्ज़ बाग दिखाए थे, तो अब तो कौम सच्ची बात है कि इनके लिए बदुआएं करना शुरू हो गई है। वो सुनामी के जिसको खान साहब तब्दीली का सुनामी कहते थे, वो अब पाकिस्तान की कौम की बर्बादी का सुनामी बन गया है। हम इसलिए निकले हैं कि खान साहब के खिलाफ पूरी कौम के जज्बात की तर्जमानी करें और इनको ये बताएं कि आपने जो कौम से वादे किए थे, अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो फिर कौम आपके खिलाफ निकलेगी। अभी आपको बताएं, विफाकी हुकूमत ने सुई गैस की तरक्याती स्कीमों पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी के बायस घरेलू सारिफीन को गैस कनेक्शन भी नहीं मिल सकेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर कुदरती गैस की कमी की वजह से कंपनी के तमाम रीजनल दफातर में अवामी फलाह के मंसूबों पर पाबंदी लगा दी गई है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने जारी तरक्याती स्कीमों पर फौरी तौर पर काम रोक दिया है, जबकि नई स्कीम्स पर भी अमल दरामद नहीं किया जाएगा। स्कीम्स पर पाबंदी की वजह से घरेलू सार्फिन को गैस कनेक्शन भी नहीं मिल सकेगा। जराये के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने पुराने सिस्टम पर मजीद कनेक्शन देने के लिए वजारत पेट्रोलियम से हिदायत मांग ली है। वासा का वेस्टवुड कॉलोनी ठोकरता मोहलनवाज शाहकाम चौक तक सीवरेज डालने का मेगा प्रोजेक्ट एमपी वासा ने हुकूमत पंजाब से मंसूबा फौरी शुरू करने के लिए 2 अरब 91 करोड़ का बजट मांग लिया। समरी वजीर आला को इरसाल।
वासा ने जनूबी लाहौर की आबादी को बड़ा सीवरेज सिस्टम देने की तरजीही मंसूबे पर काम शुरू करने का फैसला कर लिया है। वासा ने वेस्ट वुड कॉलोनी, ठोकर ता मोहलनवाल, शाकाम चौक तक सीवरेज डालने का मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया था। MD वासा ने हुकूमत पंजाब से मंसूबा फौरी शुरू करने के लिए 2 अरब 91 करोड़ मांग लिए। MD वासा सैयद जाहिद अजीज की जानिब से समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। माली साल 2021-22 में शामिल मेगा सीवरेज मंसूबे की 100% फंडिंग की सदा की गई है। मंसूबे में शामिल मोहलनवाल स्कीम में पंपिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर ये है कि महकमा खजाना का खिलाड़ियों की वेलफेयर के लिए फंड मंजूर करने का फैसला। महकमा स्पोर्ट्स ने खिलाड़ियों की फलाह के लिए 7.5 करोड़ की समरी भेज रखी है। खिलाड़ियों के लिए हुकूमत की जानिब से अच्छी खबर सामने आई है। महकमा खजाना ने खिलाड़ियों की वेलफेयर के लिए फंड मंजूर करने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फवाद हाशिम रबानी का कहना है कि महकमा खजाना ने खिलाड़ियों की फलाह के फंड्स की मंजूरी का इंदिया दिया है। महकमा स्पोर्ट्स ने खिलाड़ियों की फलाह के लिए 7.5 करोड़ रुपए मांग रखे हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का कहना है कि महकमा स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को वेलफेयर के नाम पर इमदाद देना चाहता है। साबका और मौजूदा खिलाड़ियों की माली इमदाद की जाएगी। खराब फर्नीचर देने और तब्दील न करने के केस का फैसला सुना दिया गया। सारिफ अदालत ने 1,35,000 रुपए की डिग्री जारी कर दी। फर्नीचर हाउस के मालिक को मुद्दई मुकदमा को फौरी हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत में सब्जाजार के मोहम्मद आबिद ने हर्जाने का दावा दायर किया था, जिसमें उसने GM फर्नीचर मजंग चुंगी के मालिक को फरीक बनाते हुए मौकिफ इख्तियार किया कि उसने घर के लिए नया फर्नीचर खरीदा जिसकी 10 साल की वारंटी दी थी। उसने फर्नीचर को घर में इस्तेमाल किया तो 2 माह में ही फर्नीचर जगह जगह से टूटना शुरू हो गया। उसने फर्नीचर हाउस के मालिक से एहतजाज किया, लेकिन उसने बात सुनने से इनकार कर दिया, जिससे वो ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गया। सारिफ अदालत के जज मोहम्मद वसीम अफजल ने समाअत के बाद दरखास्त गुजार के हक में डिग्री जारी कर दी। टाउन हॉल में मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की जेर सदारत बल्दियाती नुमाइंदों का अहम इजलास हुआ। डेप्टी मेयर्स, डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स, UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शरीक हुए। मेयर लाहौर ने बल्दियाती नुमाइंदों को अपने दफातर संभालने और मसाइल हल करने की हिदायत की। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने इख्तियारात मिलने के बाद टाउन हॉल में बल्दियाती नुमाइंदों का इजलास किया। उन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब करते हुए अवामी मसाइल जल्द हल करने पर गौर दिया। कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद का कहना था कि हमने तवील कानूनी जंग के बाद इख्तियारात हासिल किए। अब ये इख्तियारात अवाम की फलाह और खिदमत के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला जो कुछ हुआ हमारे बस में वो ज़रूर करेंगे और हमें इसके लिए हुकूमत पंजाब को बताना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के मुताबिक चलो और हमें काम करने दो। इजलास में डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन, मुश्ताक मुगल, एजाज हफीज, नजीर खान सवाती, मियाँ तारिक चौधरी बिलाल, महर महमूद ने शिरकत की, जबकि डिप्टी मेयर चौधरी अल्लाह रखा और वसीम कादिर गैर हाजिर रहे। इजलास में शरीक बल्दियाती नुमाइंदों ने डींगी के सदेबाब और सफाई यकीनी बनाने के लिए काम करने का अज़म किया। सबसे ज़्यादा जो मामलात ख़राब हुए ना वो है कूड़ा करकट के। जो मेन शाहराहें हैं वो भी डिस्टर्ब हो गई और गली मोहल्ले भी। सबसे पहले तो हम इसके LWMC के साथ काम करेंगे और गली मोहल्लों को साफ करेंगे। डेंगू का तो बहुत ज़्यादा मसला और इंशाल्लाह ये तमाम मामला इन 2 माह में हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। इजलास में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मोहम्मद परवेज मलिक मरहूम के साले सवाब के लिए ख्वातिया खानी की गई। कैमरामैन अली नुमान के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। दुबई एक्सपो में शिरकत के हवाले से सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल, तर्जुमान पंजाब हुकूमत एहसान खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियाँ असलम इकबाल कहते हैं महंगाई का सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसके असरात आ रहे हैं। मियाँ असलम इकबाल ने DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दुबई एक्सपो का बुनियादी मकसद दूसरे ममालिक के इन्वेस्टर्स को मुतवज्जो करना है और पंजाब हुकूमत नवंबर में 1 माह के लिए एग्जीबिशन में शिरकत करेगी। NA 133 के ज़िमनी इंतखाब का मार्का। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग तक हल्के में तरक्याती कामों और सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। NA 133 में इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होने के बाद हल्के में तरक्याती स्कीमों और तबादलों पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी का इतलाक पोलिंग डे 5 दिसंबर तक रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत, महकमा बल्दियात समेत तमाम सरकारी इदारों को मरासला भिजवा दिया। ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला शुरू हो गया। पहले दिन 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। पीर तक कागजात नामजदगी हासिल किए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने चौधरी असलम गिल को टिकट जारी कर दिया। PP वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ का कहना है पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। NA 133 की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के परवेज मलिक के इंतकाल से खाली होनी है।
ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने 26 अक्टूबर को फैजाबाद में एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया। मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर कहते हैं हुकूमत ने ताजिरों को रिलीफ देने की बजाय तंग ही किया। सेल्स टैक्स ताजिरों पर नहीं, अवाम पर बोझ है। डेविस रोड पर ताजिर रहनुमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने कहा कि ताजिर बरादरी मुसीबत और परेशानी में है। हम चाहते हैं इससे हमें निजात मिले। ताजिरों के मसाइल के हल के लिए 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद धरना देने जा रहे हैं। हुकूमत अपनी यकीन दहानी तहरीरी मुआहिदों के बावजूद उनका पास नहीं कर रही। नईम मीर का कहना था कि हुकूमत वजीर मीडिया पर आकर बयान देते हैं और फिर मुकर जाते हैं। हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से हर तबका एहतजाज करने पर मजबूर हो चुका है। 2 साल कबल जिन्होंने मुआहिदों पर दस्तखत किए उन वज़रा को ओहदों से हटा दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स के मामले पर अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ। जौहर टाउन में मीट अप लाउंज कैफे पर फनकारों की बैठक। हुमैरा अरशद और नूरा लाल के गानों पर हाजरीन झूम उठे। तकरीब में शरीक फनकारों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। मारूफ मेकअप आर्टिस्ट विक्की चौधरी ने अपने कैफे मीटअप लाउंज कैफे में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया। फैशन डिजाइनर टिम्मी राय, गुलूकारा हुमैरा अरशद, नूरा लाल, सोमिया खान, फरा अनवर, इनमोल नूर समेत दीगर फनकारों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। नूरा लाल ने मशहूर गाने सुनाकर समा बांध दिया। हुमैरा अरशद ने भी हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। शुरका का कहना था कि कोरोना की वबा में नुमाया कमी के बाद ऐसी तकरीबात का इनेकाद वक्त की जरूरत है। कोरोना ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया था, तो अभी हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। अच्छा मौसम है और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हम लोग एक दूसरे से मिलते रहें। अब जब कोविड से हम निकल रहे हैं, सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ का दोबारा आगाज़ हो गया। यकीनन यहाँ पे हमारा वो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। मेकअप आर्टिस्ट विक्की चौधरी ने बताया कि कैफे बनाने का मकसद दोस्तों के साथ महफिल जमाना और गपशप करना है। ये था कि मैं कुछ नया करूं, क्योंकि आपको पता है एक फील्ड के अंदर रहते रहते काफ़ी टाइम आपका हो जाता है, तो मैंने चाहा कि क्यों ना लोगों के खाने के जरिए दिलों में उतरा जाए। कोरोना की वबा में तफरीही सरगर्मियों को ब्रेक लग गया था। तकरीबात के दोबारा आगाज पर शहरियों ने मुसर्रत का इजहार किया है। कैमरामैन टीपू मलिक के हमरा ज़ैन मदनी हुसैन, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।